باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سہیل شوکت بٹ صاحب، میرے NA 120 کے بھائیوں، نوجوانوں، اس وقت دن کے 11:30 بجے ہیں اور گرمی عروج پہ ہے۔ 42 ڈگری ٹیمپریچر ہے، اوپر سے بھی آگ برس رہی ہے اور سڑک بھی آگ برس رہی ہے، مگر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ سب کو جو آج اکٹھے ہوئے۔ آج اکٹھا ہونے کے 2 مقاصد تھے۔ پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ کو پاکستان نے فتح دی ہے اس جنگ میں ہندوستان کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کی وساطت سے پورے پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور خصوصاً محمد نواز شریف صاحب کا۔ اگر وہ پاکستان کو ایٹمی طاقت نہ بناتے تو آج دشمن جو ہم سے کئی گنا زیادہ آبادی میں، طاقت میں، جہازوں میں، ٹینکوں میں ہے، ہم یہ فتح حاصل نہ کر سکتے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پرائم منسٹر پاکستان کو، محمد شہباز شریف صاحب کو، جنہوں نے دنیا کے ہر ملک کو اصلیت بتائی۔ انہوں نے ہر وزیر اعظم کو، ہر صدر کو، ہر بادشاہ کو بتایا کہ پاکستان کا موقف کیا ہے۔ میں شکریہ ادا کروں گا محمد اسحاق ڈار صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر آف پاکستان، جنہوں نے دن رات جاگ کے رابطے رکھے سارے ممالک سے۔ جب ہندوستان پہ حملہ ہوا تو پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی، حکومت پاکستان نے مذمت کی۔ ہندوستان نے اپنی عادت سے مجبور الزام پھر سے پاکستان پہ دے دیا، جبکہ جعفر ایکسپریس میں سب جانتے، پوری دنیا جانتی کون ملوث تھا جو جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوا۔ جب انہوں نے الزام پاکستان پہ دیا تو پاکستان نے یونائٹڈ نیشن یا کسی دوست ملک کی بات کی کہ وہ آئیں اور ایک آزادانہ، منصفانہ تحقیق کریں۔ پاکستان دہشت گردی کا ساتھ دے گا، کیونکہ پاکستان سے زیادہ کون جانتا ہے جس نے 90,000 شہادتیں دی دہشت گردی کی وجہ سے۔ تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ دنیا کے ہر ملک سے بات کرنے پہ فتح دے دی۔ دوسری، جب پاکستان نے پیشکش کی کہ یونائٹڈ نیشن یا کوئی دوست ملک اس کی تحقیق کرے، ہندوستان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ ہندوستان نے پانی روکنے کی بات کی، اس کا مطلب ہے اعلان جنگ کیا پاکستان کے اوپر۔ انٹرنیشنل ٹریٹیز توڑی، یہاں تک کہ نیلم جیلم کے کسی بھی جنگ میں کسی کے پانی کو روکنا ایک اور جنگ، اعلان جنگ ہے۔ پاکستان کے اوپر حملہ کیا افواج پاکستان۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سپاہ سالار افواج پاکستان جنرل عاصم منیر صاحب کو۔ میں اپنے ایئر چیف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں نیول چیف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہندوستان کا منہ توڑ جواب دیا۔ انہوں نے پاکستان کا دنیا کی تاریخ میں 50 منٹ سے زائد کی جو ہوائی اور زمینی جنگ تھی، اس میں دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان کتنا مضبوط ملک ہے۔ اس میں کہتے تھے کہ پاکستان کے پاس جو اسلحہ ہے، جو جہاز ہیں، اس سے بہت زیادہ بہتر اسلحہ اور جہاز ہندوستان کے پاس ہے اور بہت گنا زیادہ ہے۔ مگر افواج پاکستان کے جوان، ہمارے ایئر فورس کے پائلٹ اور نیوی کے کرو مین، انہوں نے
साबित किया कि सिर्फ असला, टैंक, जहाज, बहरी जहाज नहीं, दिल गुर्दा चाहिए हमारे पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स और नेवी के जवानों में वो सलाहियत है जो दुनिया की किसी अफवाज में नहीं है। हमें उन पे फख्र है जिन्होंने अपने जानों के नजराने दे के पाकिस्तान को इस जंग में भी महफूज रखा और अपने दुश्मन को पेश थी एक टीम वर्क की, जिसमें हिदायत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब, सिपाही सालार और सारे फोर्सेस के अफसरान उनकी बैठ के मुशावरत के कब अटैक करना है, कब पाकिस्तान को ज़रूरत है दिफा करने की। बहुत लोगों ने बातें की कि ड्रोन आ रहे हैं और ड्रोन अंदर आ गए, ड्रोनों पे कुछ नहीं किया गया। तो उन लोगों को बता दूं कि जिन तोपों ने ड्रोन को मारना था, अगर हम मार देते तो हिंदुस्तान को पता चल जाता कि वो तोपें कहाँ हैं, वो उन तोपों पे हमला करते। इन्होंने अक्लमंदी से उन ड्रोनों को, और आप भी जानते हैं वो ड्रोन कहाँ के बने हुए थे, ये इजरायली ड्रोन थे। ये वो इजरायली ड्रोन थे जो गाजा के मासूम बच्चों के ऊपर ये गिराते हैं, जो औरतों और अस्पतालों के ऊपर गिराते हैं। वो ही गठजोड़ हिंदुस्तान और इजराइल का जिन्होंने हमला किया। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से पूरा पाकिस्तान मुत्तहद हो गया अपने अफवाज की पीठ पे कि हम आपके साथ हैं। कौमी असेंबली में सारी जमातों ने अहद किया कि पाकिस्तान की खातिर हम सब इस जंग का हिस्सा हैं, और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। दुनिया के मुझे बहुत से ममालिक से फ़ोन आए स्पीकर्स के, जिन्होंने मुबारकबाद दी कि पाकिस्तान एक ज़माने में इस्लाम का किला होता था। वो कहने लगे एक ज़माने में नहीं, पहले भी इस्लाम का किला था जब नवाज शरीफ साहब ने एटमी ताकत बनाया था, और आज भी पाकिस्तान इस्लाम का किला है। तो अल्लाह ताला की शान देखें। एक मौका अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ साहब को दिया एटमी ताकत बनाने का, और दूसरी सलाहियत और फ़ख्र से कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत को दिया कि शहबाज शरीफ साहब ने किस जहन पे बोझ के बावजूद, किस टेंशन के बावजूद उन्होंने वो लीडरशिप दिखाई जो नवाज शरीफ साहब ने दिखाई थी, और पाकिस्तान की खातिर कोई झोल नहीं आया। ये हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र करें कम है। और आज यौम तशक्कुर भी समझें। आप आज अल्लाह ताला के हाजिर में सजदा रेज हो के हम शुक्रिया जितना अदा करें वो कम है। और हमने ये भी बता दिया कि दुनिया कहती थी चीन का असला अच्छा नहीं है, तो चीन का असला कितना अच्छा है वो भी दुनिया को दिखा दिया। तुर्की हमारे साथ खड़ा था, अजरबैजान हमारे साथ, इस्लामी दुनिया सारी आपके साथ खड़ी थी, चूंकि आप हक सच पे थे और आपकी फतह अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुई। और ये जो जज्बा होता है जब हमारे जवान लड़ते हैं, मैं CMH गया तो जो जज्बा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जज्बा जो है शहादत का जज्बा, उन जवानों ने जिन्होंने आपको और हमें महफूज रखा, जिन्होंने बॉर्डरों पे गोलियां खाई, जो जख्मी हुए, जो शहीद हुए, चाहे वो फौज हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, पुलिस हो, कोई भी हो, जो वर्दी में था उसने अपना पूरा रोल अदा किया। तो मैं आप सबको मुबारकबाद भी देता हूं। बहुत चालाक और मक्कार है, तो हमने दुश्मन की ताकत का मुकाबला एके से करना है। और यह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जो एका दिखाना जानती है, चाहे वो नवाज शरीफ का एटमी धमाका हो
या अब हिंदुस्तान के साथ जंग हो। मैं शुक्रगुजार हूं अपनी चीफ मिनिस्टर साहिबा का, मरियम नवाज साहिबा का। वो हमारी बेटी भी हैं और हमारी बहन भी हैं। उन्होंने शायद पूरे लाहौर में इतना पैसा नहीं लगा रहे, डेवलपमेंट का दे रहे हैं जो इसमें। एमडी वासा भी खड़े हैं और हमारे नौजवान असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी खड़े हैं, जिनका वादा है, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, अल्लाह ताला ने मौका दिया। तो आपकी जो शहरों वाला सड़कें है उसका मैं बताता हूँ। मुझे एमडी वासा साहब कहने लगे जी 19 अरब रुपए लगना है। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आती 19 अरब पे। 1 अरब में 100 करोड़, 2 अरब में 200 करोड़, 19 अरब में 1900 करोड़ रुपए वासा, सीवरेज, पीने का पानी, ट्यूबवेल। सिर्फ मेन रोड नहीं है, ये जितनी गलियां जा रही हैं अंदर, हर गली का ये काम इंशाल्लाह होगा। ये NA-20 का तकरीबन आधा हिस्सा है आबादी के हिसाब से। यहाँ पानी खड़ा होता था, यहाँ जनाजा कब्रिस्तान में नहीं जा सकता था, यहाँ मस्जिद तक नहीं जाया जाता था चूंकि सड़क और पानी नहीं थी। मगर इसका तो सवाब भी मिलेगा। CM साहिबा को नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस और क़यादत में उन्होंने जो पैकेज दिया, मैं उसका बताता हूँ। जिस तरह मैंने कहा 19 अरब रुपए, 1 करोड़ का नहीं, 1900 करोड़ रुपए इस हल्के पे सिर्फ ट्रंक आएगा। जो आप बड़े बड़े पाइप दे रहे हैं, ये 20 किलोमीटर है, दोनों साइडों पे सीवरेज 20 किलोमीटर का, और ये नहर को भी टच करेगा। इसके रेलवे लाइन, नहर, ये एमडी वासा साहब साथ साथ बता रहे हैं। 21 ट्यूबवेल यहाँ लगाए जाएंगे, जिससे पीने का पानी और इस्तेमाल का पानी दिया जाएगा। वाटर सप्लाई की जो पाइप पड़ेंगे वो 180 किलोमीटर हैं सिर्फ इस एरिया में, 180 किलोमीटर। आपको इंशाल्लाह पानी खराब नहीं मिलेगा। ये दुआएं हैं मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब के लिए और CM साहबा के लिए। और जो सीवरेज है जो अंदर जाएगा, मैं मेन सीवरेज की बात नहीं कर रहा, वो 135 किलोमीटर जाएगा ये अंदर इस सारे इलाके में। इसमें जो गलियां बनेंगी वो 2300 गलियां हैं। तो 2, 4, 23, 25 गलियां नहीं, 2300 गलियां बनेंगी। पहले सीवरेज और पानी के पाइप डलेंगे, उसके ऊपर फिर गलियां बनेंगी। उसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर साहब के जिम्मे जब ये हल्का है, इसमें हमारे गांव भी हैं, इसमें हमारी वो आबादियां हैं जो वासा से कनेक्टेड नहीं है, फासले दूर होने, उसमें नाली का सिस्टम। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो एक भी गली, मेरे साहब खड़े हैं और एमडी वासा खड़े हैं, इन्होंने एक एक गली को खुद और अमले को इन्हें विजिट किया है और इनका वादा है कि कोई गली नहीं रह जाएगी। आप लोगों का यही मसला होता था, बाहर निकलते थे तो पैर कीचड़ में जाता था। आप लोगों का मसला होता था, पानी नहीं आता था। आप लोगों का बेशुमार मसाइल थे। वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और चीफ मिनिस्टर साहिबा के फंड, अगर वो फंड ना देती तो हम ये काम ना कर सकते। आज इफ्तिताह है, मगर मैं एक दिन चाहूँगा कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा, CM साहिबा, वो खुद आके जब ये काम मुकम्मल हो तो आके उनके मुबारक हाथों से नवाज शरीफ साहब के ये गर्मी ज़्यादा है और मैं ये आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा, इस वक्त है मुत्तहद होने का, इस वक्त है पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा होने का। दुश्मन के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, हर उस चीज़ के खिलाफ
जो अवाम दोस्त नहीं है। और जो हमारी सीएम साहबा हैं, मैं चाहूँगा कि वो खुद आपको आके बताएं कि क्या कुछ किया। ये मेरा छोटा भाई जो वज़ीर है, इन्होंने जो इज्तिमाई शादियां कराई हैं अपने महकमे में, जो लोग जिनके पास पैसे नहीं, पूरे पंजाब में हर शहर में जाके खुद सीएम साहिबा की डायरेक्शन पे इन्होंने धी रानी प्रोग्राम के तहत कितनी शादियां कराई? 3,000 साढ़े 3,000 खानदान बसे हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं, ये तो सवाब का काम है। ये दो काम हो रहे हैं। जब आपको साफ पानी मिलेगा, जब आप घर से मस्जिद के लिए निकलेंगे और पानी नहीं खड़े होगा तो क्या होगा? थोड़ी सी दुआ हम दोनों के लिए और बहुत सारी दुआएं नवाज शरीफ साहब और चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए। और जल्द हमारी कोशिश ये होगी कि अगला जो शादियों का प्रोग्राम है उसमें निकाह भी पढ़ाया करेंगे सोहेल साहब। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आप इस गर्मी में आए अदा करता हूँ। चीफ मिनिस्टर पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वजीर आजम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। डिप्टी वजीर आजम पाकिस्तान का शुक्रिया करता हूँ और अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया करता हूँ। पाकिस्तान